बॉटनी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशा रानी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और वेलकम स्पीच के लिए बीएससी सेकेंड ईयर से अदिति सिंह को आमंत्रित करता हूं। I call Aditi Singh for the formal welcome of Dr. Asha Rani. Aditi, over to you. Good morning, everyone. Myself Aditi Singh from BSc second year, and on the behalf of our botany department, I would like to welcome our today's lecturer, Dr. Asha Rani Ma'am, Assistant Professor in Botany Department at Bareilly College, Bareilly. So, a very warm welcome to the 12th lecture of this botany lecture series, and today's topic is oxygen and its role in growth. Ma'am, we are much honored to have you over here, waiting for this knowledgeable lecture. And now it's over to you, ma'am. Please go ahead. And once again, thank you. Thank you, Aditi, and thank you very much, Dr. Adarsh Pandey, to give me such opportunity to introduce your students. I will share something about the oxygen and its role in growth. As you know that the growth is a basic character of the all living organism. After growth, there is a main change in size, volume, weight, and the other things of the plant. You know that the growth is taking place due to the activity of the meristematic cells. These meristematic cells has the power of the continuous division, and they are present mainly in the root and the shoot apex. Okay, and the in plants growth is confined to the all these regions, but this growth is affected by the many factors, such as the environmental factors, genetic factors, and the internal factors. Here I will discuss about the some internal factors. Environmental factors में बहुत सारी चीजें होती हैं, temperature है, water है, light है, water है, and nutrients हैं. And when we talk about the internal factors, so there are different factors which are responsible for the growth. First of all, we will talk about the what is growth. Growth क्या है? In a plant, it is outcome of the cell division. You know that the number of the cells increase by the cell division, and after this, the enlargement of the cells take place because the size of the daughter cell is less than the parent cell. So after cell division, the enlargement of the cells takes place, and then these cells differentiate into the different types of the tissues, and these tissues form the organs. Or we can describe it as the size increases by the enlargement, including synthesis of the new cellular material and organization of the subcellular organelles. Or we can say it irreversible change in the mass. यानी the जो result है growth का वो क्या है? Irreversible change in the mass. And what is the development? How can we differentiate the growth from the development? Development is the irreversible change in the state. You know that the plant has the different state in whole life cycle. When a plant transfer into the one state to that another state, then it is known as the development, such as embryogenesis, when it goes to the juvenile stage, then goes to the adult vegetative state, and then to the adult reproductive state. This is known as the development, when the plant change the one state to the another state. But the growth is the cell division and the enlargement of the new cells. As we talk about that, they are the different factors for the growth. One important factor, internal factor, is the hormones. Hormones क्या हैं? Hormones generally क्या होते हैं? एक organic substance होते हैं. Mainly they are produced in the जितने भी जो growing birds होती हैं, जो growing points होते हैं, उसमें ये produce होते हैं. और important factor क्या है कि जहां ये produce होते हैं वहां ये work नहीं करते, उस दूसरी जगह जाकर ये जो है काम करते हैं. So organic substances produced naturally in the higher plants, controlling growth and other physiological functions at a site remote from its place to production and active in the minute amount. They always need in trace. यानी कि बहुत कम मात्रा जो होती है वही जो है रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा जो मात्रा होती है वो टॉक्सिक होती है प्लांट्स के लिए. पिंकस और थाइमन ने ये जो है डेफिनेशन दी थी, और स्टार्लिंग ने जो है टर्म जो दी थी सबसे पहले जो दी थी हार्मोन. And to differentiate from the animal hormone, we can call them as the phytohormone. Any hormone which are present, which are produced in the plants, are known as the phytohormones.
These are some common phytohormones. आप पढ़ते हैं commonly इनको, in which the some are growth promoters and some are the growth inhibitors. Auxins, cytokinins, gibberellins are the growth promoters, and the ethylene, which is also known as the gas hormone, and the abscisic acid are known as the growth inhibitors. What are the basic characters of these hormones? They are usually produced at the tip of the root and the shoot apex and the root apex. The transfer of hormones from producing part to other parts take place through the phloem. यानी कि इनका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है. Their growth promoting actions occurs only when they are used in the definite quantity and the concentration. They are required in a very minute concentration from 10 to the power minus 7 and minus 13. Very minute quantity में ये जो है, they are required in traces. They can be isolated from the plant organs by the chemical method से भी इनको जो है प्राप्त किया जाता है. ऑक्सिन के बारे में जो बेसिक थोड़ी सी हम बात आपको बताना चाहूंगी कि ऑक्सिन जो है दे आर नोन एज द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग फाइटोहार्मोन. सबसे पहले कोगल और स्मिथ ने इसको ह्यूमन यूरिन से जो है निकाला था. जो एविना कर्वेचर टेस्ट है उसके द्वारा 33 गैलन्स ह्यूमन यूरिन को उन्होंने प्योरीफाई किया. डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने यूज किए और जो फाइनल यील्ड थी वो 40 मिलीग्राम क्रिस्टल जो है उन्होंने इंडोल एसिटिक एसिड के जो है प्राप्त किए. पहले जो उन्होंने प्रोडक्ट मिला वो उन्होंने उसका नाम दिया ऑक्सिन ए. उसके बाद फिर उन्होंने जो है प्रैक्टिकल किया ऐसे ही प्योरिफिकेशन का, लेकिन इस बार उन्होंने जो बेसिक जो मटेरियल लिया वो लिया था कॉर्न जर्म ऑयल, और उसी प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से उन्होंने दूसरा जो है सब्सटेंस जो है वो प्राप्त किया, वो उसको उन्होंने कहा ऑक्सिन. उसके बाद फिर उन्होंने इसी को रिपीट किया. उसके बाद उन्होंने एक अनोदर कंपाउंड प्राप्त किया जिसको उन्होंने नाम दिया हेटेरोऑक्सिन, जो कि बिल्कुल 3 एसिटिक एसिड उसका नाम दिया, जिसकी एक्टिविटी इंडोल 3 एसिटिक एसिड. दिस इज द ब्रीफ पॉइंट्स अबाउट द ऑक्सिन डिस्कवरी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सिन, you know very well it. There are some natural auxins and some are synthetic auxins. Natural auxins are those organic substances which are found in the plants naturally. And what are the synthetic? Synthetic जो auxins होते हैं या जो भी और other organic जो substance होते हैं, basically जो synthetic हमारे auxins होते हैं, they are named as the plant growth regulators. They are named as the growth regulators. ये जो होते हैं ये लैब में तैयार किए जाते हैं और इनके जो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो सेम ऐसे होते हैं जो नेचुरल ऑक्सिन्स के होते हैं, लेकिन बस दे आर केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लैब, सो दे आर नोन एज द सिंथेटिक ऑक्सिन्स. Distribution of the auxin in the plants. First of all, we have to know that कहाँ पर जो ऑक्सिन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लांट्स में, कहाँ इनकी जो है कॉन्सेंट्रेशन होती है. अब ये देखिए यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, इट इज द सीडलिंग ऑफ डाइकॉट एंड दिस इज द मोनोकॉट. मोनोकॉट में आप देखिए कॉलिप्टाइल, आपको मालूम है कॉलिप्टाइल टिप होती है, एक जो न्यूली जो लीव्स होती है, नई जो पत्तियां होती हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से ढकी होती है, दैट इज नोन एज द कॉलिप्टाइल. इसकी टिप पर आप देखिए, जैसे अभी हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है वो शूट टिप और रूट टिप पर होता है. अब उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम आप देखिए दिखाई दे रही है शूट टिप पर, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी. हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रूट और शूट टिप में ही होती है, बट व्हेन वी कंपेयर विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन इन द रूट और शूट टिप, इट इज हाईएस्ट in the shoot tip in comparison to the root tip, and it has the different level of the auxin concentration at the different parts of the plant. So here we are showing that what is the concentration level of the auxin in the monocot and the dicot plant and the different levels. अब ये हमने बताया कि जो सिंथेसिस है it is taking place in the meristematic region, या जहां भी ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, from where it has to go on the different parts. ट्रांसलोकेशन जो होता है वो प्लांट के सारे पार्ट्स में जाएगा ऑक्सिन अपनी जो है एक्टिविटी करने के लिए, जो भी उसका मैकेनिज्म होगा उसके लिए इसका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, और हमने बताया जो ट्रांसपोर्टेशन इज टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम. सिंथेसिस मेरिस्टेमेटिक रीजन में है, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट का जो है वो क्या डायरेक्शन होगी. बाइपोलर ट्रांसपोर्ट हैज बीन फाउंड इन द प्लांट्स अबाउट द ऑक्सिन, यानी कि जो ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इट टेक्स प्लेस इन द 2 डायरेक्शंस मेनली, फ्रॉम टॉप टू बेस
which is known as the basipetal translocation of the auxin, यानी from the shoot tip to the root tip, and then acropetal, यानी कि base से और ऊपर की तरफ भी इसका ट्रांसलोकेशन होता है. तो both of the translocation are found basipetal and the acropetal, although basipetal translocation is most prominent in comparison to the acropetal translocation. When we talk about the ratio of both of this direction, it is found that the basipetal is the third time than to the acropetal. The ratio is 3:1. Sometimes scientists suggest that there is the lateral translocation also, because the लीफ की जो टिप होती है वहां पर भी जो है ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है when it translocate to the lower part towards the petiole. तो this is not basipetal, this is not acropetal, this will be the lateral translocation. But not much more literature was found in the books about the lateral translocation. Mostly basipetal and acropetal translocation was recommended. This is the chemiosmotic model of the translocation. जनरली जो है हम ट्रांसलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो केमियोस्मोटिक मॉडल जो है वो ट्रांसलोकेशन का दिया गया है कि किस तरह से जो है एक सेल से, क्योंकि आपको मालूम है कि टिप पर जो है ऑक्सिन का जो है सिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद जो है ये ऑक्सिन एक सेल से दूसरी सेल में जो है वो जाएगा. तो ये जो इट इज नॉट इजी, इजी नहीं है कि जो ऑक्सिन है वो एक सेल से दूसरी सेल में वो इजीली जो है वो मूव कर सके. तो इसके लिए केमियोस्मोटिक मॉडल जो है ट्रांसलोकेशन का वो दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दिस दैट द प्लीज सी दिस स्लाइड. दिस मैकेनिज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द रूबेरी एंड द शेड्रिक ने इसको दिया था. अब इसमें आपको यह समझना है कि जो ऑक्सिन है मेनली फाउंड इन द टू फॉर्म्स. दो फॉर्म में ये है. एक जो फॉर्म है वो है प्रोटोनेटेड या अनडिसोसिएटेड फॉर्म या नॉन आयनिक फॉर्म, और ये हाईली लाइपोफिलिक होती है. नेचुरली लाइपोफिलिक होगी, इट मींस इट कैन गेट एंट्री इजीली टू द plasma membrane because it's a highly lipophilic basic जो can get entry easily through the plasma membrane. And the second form is the anionic या dissociated form, which is indole acetic acid. ये आपको दिखाई दे रहा है. But this form can't get entered into the plasma membrane easily. ये जो फॉर्म होती है ये इजीली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री नहीं कर सकती. तो दो फॉर्म है, पहले हमको इसको समझना है कि ये दो फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं. एक है प्रोटोनेटेड और एक है हमारी डिसोसिएटेड फॉर्म, एनायनिक, और एक है नॉन आयनिक. अब इसकी एंट्री इजीली हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है कि इसकी एंट्री इजीली, क्योंकि हाईली लाइपोफिलिक है, लेकिन इसकी एंट्री जो है इजीली नहीं होगी. तो अब इसको देखिए, यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, थर्ड सेल है. हाउ कैन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कैसे इसका जो है ट्रांसलोकेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर दैट इंडोल एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल वॉल रीजन. इट इज हियर indole acetic acid in ionic form, and this one the indole acetic acid in protonated form. It can get entry easily. You can see here that IAH, protonated form, can get entry easily. It is going inside the cell through the plasma membrane without any disturbance. But what about the indole acetic acid? जो ionic form है, it can't get entry, so it need help of some transporters या अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द करियर प्रोटीन्स, जिसकी सहायता से ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी और अंदर जो है उसमें एंट्री ले पाएगी. क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड का एक सेल से, क्योंकि हमने बताया भी क्या है कि पोलर ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम बेस टू टॉप टू बेस. तो जब पोलर ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको ऊपर की सेल से नीचे की सेल में जाना है. तो इसके लिए इसको ये केमियोस्मोटिक मॉडल है. तो ये दो फॉर्म हो गई. एक फॉर्म इजीली एंट्री कर रही है जो आयनिक फॉर्म है, और एनायनिक फॉर्म है, और जो आयनिक फॉर्म है उसको क्या है, उसको हेल्प की जरूरत है. और वो जो हेल्प करेगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. दे आर नोन एज द परमिएज proton co-transport, और we can say these are also known as the OX1, और हम इनको कह सकते हैं influx carrier protein. Influx, the entry of the auxin in the form of the ionic form through some protein carrier is known as the influx.
इनफ्लक्स माने एंट्री, और जब ये इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ से एग्जिट करेगा, किसी अनदर सेल में जाएगा, दैट इज नोन एज द efflux. There are two terms, influx and the efflux. Influx, entry of the oxygen into the cell, and इसके बाद exit of the oxygen from the cell to get entry into the another cell. That is known as the efflux. So two different types of the enzymes are present to give entry, अंदर एंट्री कराने के लिए और उनको बाहर भेजने के लिए भी, क्योंकि यू नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल, सो दे नीड हेल्प टू गेट एंट्री इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो हेल्प करते हैं दैट इज नोन एज द कैरियर इनफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स. दे आर आल्सो नोन एज द OX1 और परमिएज प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट भी हम इसको कहते हैं. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इनको यहाँ से एंट्री कराते हैं, क्योंकि इनकी जो एंट्री है वो आयनिक फॉर्म में नहीं हो सकती है. व्हाट विल हैपन व्हेन दे गेट एंट्री इनटू द one condition is essential for this cell wall. जो pH होता है, जो pH होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि जो pH है यहाँ सेल वॉल का it is 5, यानी कि जो माहौल है यहाँ का, जो एटमॉस्फेयर है, it should be acidic. तो pH is 5 and then they can get entry into the cytoplasm through the plasma membrane directly or indirectly with the help of the carrier proteins. Then what will happen, you can see here this non-ionic form, जो protonated form है, it will dissociate again into the ionic form and the protons again. तुरंत ये साइटोसोल में यानी कि साइटोप्लाज्म में जाते ही इसकी क्या होगी, यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगा और ये फिर से इंडोल एसिटिक आयनिक फॉर्म में और प्रोटॉन्स को ये अलग कर देगा. उसके बाद ये ऐसा इसने भी यहाँ पर एंट्री कर ली. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये pH यहाँ दिखाई दे रहा है कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन pH is 5 यानी कि एसिडिक, बट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन द साइटोसोल द pH is maintained 7, यानी कि ये न्यूट्रल है. और जैसे ही pH 7 होगी यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का. उसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोन पंप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. एटीपीएस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में जो है बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. अब ये क्या करेंगे कि जितने भी प्रोटॉन्स यहाँ पर बने आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, दे विल थ्रो आउटसाइड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर क्या होगा, ये नाम जो दिया गया है केमी ऑस्मोटिक मॉडल. केमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में आपको मालूम है कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ions or water molecules, solvent molecules from the region of its higher concentration to the region of the lower concentration. तो concentration यहाँ dissociation की वजह से ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, और लेकिन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन कम है. लेकिन इसके बाद क्या होगा, जो प्रोटॉन्स होंगे उनको बाहर भेजा जाएगा. लेकिन आपको मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, तो यहाँ पर एटीपीएस प्रेजेंट होगा जो सारे प्रोटॉन्स को सेल वॉल की तरफ जो है वो बाहर भेजेगा, प्रोटॉन्स को बाहर भेजना शुरू करेगा. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो माहौल है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट शुड बी मेंटेन द पीएच ऑफ द. अच्छा मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्लाइड्स नहीं दिखाई दे रही हैं. बाकी लोग बताएं कि केवल इन्हीं को नहीं दिखाई दे रही है या सबको नहीं दिखाई दे रही है. What should I do? मुझे तो दोबारा मैं शेयर करूं? नहीं, मुझे तो दिखाई दे रही हैं, मुझे तो दिख रही हैं. आप सबको स्लाइड्स दिख रही हैं? जरा चैट बॉक्स में बताएं फटाफट. सबको स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं? It will be tough सही to understand without. दिख रही हैं सबको. आ गया मैसेज, आ गया चैट बॉक्स में, आ गया सबका मैसेज. उन्हीं के साथ में कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको दिख रही है. ओके, may I continue? हाँ, सेजल May को I continue भैया? हाँ, you please continue. थैंक यू भैया. तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर दोनों फॉर्म में ऑक्सीजन की एंट्री होती है. एंट्री होने के बाद जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और डिसोसिएशन जब होगा वो आपको मालूम है कैटायंस और एनायंस में, उसके बाद जो प्रोटॉन्स होंगे दे विल कम आउट थ्रू द एटीपीएज. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये डिफरेंशियली परमिएबल होती है, परमिएबल नहीं है आयंस के लिए, लेकिन ये किसके थ्रू बाहर आएंगे, एटीपीएज के थ्रू जो है ये बाहर आ जाएंगे.
सेल वॉल में, और बाहर आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा, जो उसका pH लेवल होगा, इट विल डिक्रीज एंड इट विल बी एसिडिक। एसिडिक होना इट इज essential for the cell elongation, because for the growth, division, and after this the elongation of the cell is compulsory. For the elongation, the breakdown of the cell wall is compulsory. For the breakdown of the cell wall, the pH level should be low. I will discuss it in the coming slides. So this is the two forms of the auxin. How can it get entry from the one cell to the another cell, and what is the function of auxin in the cell? तो अब दो फॉर्म में हो गया, प्रोटॉन्स बाहर चले गए। अब इसके बाद इसकी जो आयनिक फॉर्म है, इट विल कम to the lower side at the base of the cell. These are sometimes you can see the red spots at the base of the cells. Basically, the auxin also need the help to come out, as it need help to get entry into the cell. बिल्कुल उसी तरीके से इसको बाहर जाने के लिए भी किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और these are the specific type of the proteins which are present at the base of the cell, and these are known as the pin proteins. The proteins which are help to exit auxin from the cell to get entry into the another cell, these are known as the pin proteins. They are present at the base of the cell. The protein carrier, that is known as the influx carrier proteins, जो एंट्री कराते हैं, और ये कहलाते हैं इफ्लक्स करियर प्रोटीन, जिनकी हेल्प से जो ऑक्सिन होता है वो बाहर आता है। सेम प्रोसेस फिर वही होगा, ये फिर यहाँ पर आएगा बाहर, प्रोटॉन्स के साथ ये जुड़ेगा और प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाएगा, इसके बाद ये एंट्री लेगा, और ये जो आयनिक फॉर्म होगी उसके लिए फिर से जो है परमेज हाइड्रोजन आयन जो ट्रांसपोर्ट है उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल। दिस इज द रिएक्शन दैट किस तरह से ये जो है आयंस में बदलता है। तो ये वही चीज है, इन्फ्लक्स यानी कि अपटेक। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नहीं सही है, आप सही हैं। पीएच लो है सेल वॉल की, वो जरूरी है, जिससे कि एक्टिविटी जो है एटीपीएसेस की वो भी जब ही एक्टिव होंगे जब पीएच लेवल जो है वो क्या होगा, लो होगा, और वो बाहर उसको भेजेगा। इसके बाद इन्फ्लक्स जो करियर प्रोटीन्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज द 2H oblique इंडोर एसिटिक एसिड आयंस है, आयनिक फॉर्म में सिम्पोर्टर, एंड सबको हम मिला के ऑक्स1 भी कह सकते हैं, सारे प्रोटीन जो उसको एंट्री कराते हैं। बेनेट ने इनको सबसे पहले अरेबिडोप्सिस में जो है इसको रूट में जो है उसकी जो है सर्च इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद जो प्रोटीन्स, उसका डिस्क्रिप्शन है ऑक्सिन इफ्लक्स, जिसकी वजह से जो है ऑक्सिन जो है वो सेल से बाहर आता है। पीएच आपको मालूम है, बताया भी हमने कि वहां पर हाई है 7 है, जबकि सेल वॉल में 5 है। डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन होने के थ्रू ही क्या होगा, जो प्रोटॉन्स होंगे वो थ्रू द प्रोटीन यानी कि एटीपीएस के थ्रू जो है वो साइटोसोल से बाहर आएंगे सेल वॉल रीजन में, और उसके बाद जो उसकी आयनिक फॉर्म है वो जो है वो इफ्लक्स करेगी, यानी कि बाहर जाएगी, और वो जो प्रोटीन हमारे कहलाएंगे इफ्लक्स करियर प्रोटीन कहलाएंगे, जो कि बेस में प्रेजेंट है, और वो सारे प्रोटीन हमारे कहलाएंगे पिन प्रोटीन्स। लॉन्गिट्यूडनल पाथ है, या टॉप टू बेस या बेस टू टॉप। इसके बाद यही वही चीज है, बिल्कुल उसको डायग्रामेटिक ये रिप्रेजेंटेशन है, वो डायग्राम था, और इस तरह से ये स्केच जो है ये उसी का किस तरह से जो है एंट्री लेता है और किस तरह से वो एग्जिट करता है, किस फॉर्म में ये यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये तो था कि कैसे वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसलोकेट होता है। इसके बाद हाउ इट एक्ट, कैसे ये काम करता है, क्योंकि मालूम है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल एलोंगेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, तो फॉर द ग्रोथ डिवीजन एंड देन द सेल एलोंगेशन इज मस्ट। तो इट इज द क्लासिक रिस्पॉन्स ऑफ द ऑक्सिन टू सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन जो होता है, अगर जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं ऑक्सिन को, उसके 10 to 15 मिनट्स बाद ही जो है ये होने लगता है। और सेल के एलोंगेशन के लिए इट इज मस्ट टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल मटेरियल, क्योंकि किसी भी चीज को स्ट्रेच जब आप करेंगे तो नेचुरली क्या होगा, उसका जो आउटर कवरिंग होगी इट विल जो है ब्रेक होगी, तभी वो क्या होगी, वो टूटेगी। तो आपको मालूम है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज।
कार्बोहाइड्रेट हमारे पॉलीसेक्राइड्स है, उससे हमारा बना होता है, उनके बीच में जो है बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो उनको तोड़ना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए मीडियम शुड बी एसिडिक। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द pH should be maintained at 5, यानी कि एटमॉस्फेयर शुड बी एसिडिक, जो pH लेवल है वो कम है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, किस तरह से सेल की लेंथ बढ़ती है, दैट इज नोन एज द एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। इसको ही हम एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको बताना चाहूंगी, पॉइंट्स बताने से पहले। दिस इज द एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। इसमें आप देखिए, दिस इज द सेल, नॉर्मल सेल बिफोर इलोंगेशन, दिस इज द magnifying part of this part. Here you can see that this is the plasma membrane, bilipid layer है, पता है बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है, and these are the proton pump. यहाँ पर ये प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, एटीपीएजेस, दे आर प्रेजेंट, दे आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द, जो उसकी मेम्ब्रेन है उसमें जो है ये धसे रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि इसके ये इजीली जो है डायरेक्ट इनकी जो है बाहर नहीं जा सकते, इसके लिए यहाँ पर प्रोटॉन पंप की हमें जरूरत पड़ेगी, और ये जो है प्रोटॉन जो है इसके थ्रू ही ये बाहर जाएंगे। और ये सारा जो स्टिमुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन। स्टिमुलेट जो करता है सारा ऑक्सीजन करता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन होते हैं, जो डिसोसिएशन के बाद प्रोटॉन बने हैं ऑक्सीजन की एंट्री के बाद, वो सारे कहां पर जाएंगे, प्रोटॉन पंप के थ्रू कहां जाएंगे, सेल वॉल रीजन में, टू मेक इट एसिडिक, टू मेक इट एसिडिक। और इनका एसिडिक होना क्यों जरूरी है कि ऑल द बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स हैं किसमें, जो सेलुलोज फाइबर्स हैं, आपको मालूम है कि जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज फाइब्रस, माइक्रो फाइब्रस होते हैं, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो उनका ब्रेक डाउन इज मस्ट, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है, टू एक्सपेंड द सेल वॉल। और जब सेल वॉल एक्सपेंड होगी तभी उसका जो साइज है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूजन ऑफ बॉन्ड्स जो है उसका सेल वॉल मटेरियल का, दैट इज मस्ट। उसके लिए क्या होगा, सब जो है एंजाइम्स जो होंगे दे विल एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन फ्रॉम द ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का रोल है, प्रोटॉन का बाहर जाना, सेल वॉल का एसिडिक होना, some specific type of the proteins or enzymes will activate, which are known as the expansins. The enzymes which play a very important role to loosen the cell wall material is known as the expansins. Expand करेंगे ये सेल वॉल को, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेंगे, सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रस होंगे, और ब्रेक करने के बाद ही वो लूज होंगे, और जब वो लूज होंगे तभी वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेच होंगे। और जैसे ही वो स्ट्रेच होते हैं तभी क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल हाई होगा, सेल का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी हाई, ड्यू टू विच द एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस, यानी कि वाटर विल गेट एंट्री इनसाइड द सेल, ड्यू टू विच द सेल विल स्ट्रेच। नेचुरली पानी जब ज्यादा भर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज लचीली, फ्लेक्सिबल होती है ये, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पानी जब भरेगा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस इट विल एक्सपेंड, एंड एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, द साइज ऑफ द सेल विल इंक्रीज, एंड इसके साथ साथ ही क्या होगा, इसकी जो प्लास्टिसिटी है उसको भी, जो ऑक्सीजन है वो उसको भी बढ़ाएगा। प्लास्टिसिटी इज ऑल्सो मस्ट टू इसका जो साइज है उसको फॉर्म करने के लिए। तो ये है, इसमें इसके ये पॉइंट्स हैं, आपको मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा। मैं फ्रेंड्स एक एक बार पॉइंट फिर आपको डिस्क्राइब करती हूँ। तो द मॉडल जो है इसको हमने एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस बोला है। सेल वॉल बिकम्स एसिडिफाइड बाय इंडोल एसिटिक एसिड टर्निंग ऑन प्रोटॉन एटीपीएजेस। आपको मालूम है they are present embedded in the plasma membrane, due to the help of which they are comes out from the cytoplasm to the cell wall and make it low acidic, due to which they can break down the सेलुलोजिक जो माइक्रोफाइब्रस उनको ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बाद जीन एक्सप्रेशन में चेंज होगा, बहुत सारे वहां पर जो स्टिमुलस है
प्राइमरी जो हमारी स्टिमुलाई है दैट इज ऑक्सिन, इसके बाद बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो उस स्टिमुलाई को जो है एक्सेप्ट करते हैं और आगे जो है वो संदेश भेजते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर, क्या हुआ देखा कि जो है एसिडिक होने की वजह से ब्रेक डाउन ऑफ द वॉल मटेरियल टेक्स प्लेस। व्हेन द सेल एक्सपेंड इट इज नेसेसरी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वॉल मटेरियल। जब वॉल टूटी है तो यहाँ पर उसकी रिपेयरिंग भी जरूरी है, तो फॉर दिस सम न्यू वॉल मटेरियल इज एसेंशियल। तो ऑक्सिन विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वॉल मटेरियल फॉर रिपेयरिंग ऑफ दिस ब्रोकन वॉल। उसको क्योंकि एक्सपेंड भी हुई है और ब्रेक भी हुई है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए भी स्टिमुलस जो है वो ऑक्सिन ही स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि न्यू जो है कुछ प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, प्रोडक्शन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स टेक प्लेस which synthesize the new wall material. The proton ATPases pump hydrogen out of the cell, expanding ATP to move the proton against its electrochemical gradient, क्योंकि वहां पर electrochemical gradient है, concentration में difference है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, लेकिन वो बाहर भेजता है उसको, जिससे कि बाहर का जो माहौल है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे कि जो एक्सपेंसेस हैं they will activate and they will break down the यहाँ पर आप देखिए सेल इलोंगेशन इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सिन यहाँ पर है, ये देखिए आप इसको क्रॉस लिंकिंग सेल वॉल है पॉलीसेक्राइड की, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, दे आर बाउंड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स ड्यू टू द एंट्री ऑफ द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स which are come with the help of the proton pump. The atmosphere will outside the plasma membrane it will become acidic, due to which the expanses will activate and they will break down the microfibrils, और उसकी वजह से क्या होगा, it can easily slide, जो सेल वॉल होगी वो इजीली स्लाइड, जब बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स जो होंगे वो इजीली जो है वो स्लाइड करेंगे, तो सेल को पूरे सेल वॉल जो है उसको एक्सपेंड होने में जो है बहुत इजी होगा, और तभी जो होगा एंडोऑस्मोसिस होगा, जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो मेंटेन रहेगा, साइज उसका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेंशंस एक्टिव एट लो पीएच, ये भी जरूरी है, पीएच का लो होना क्यों जरूरी है कि वो एंजाइम तभी एक्टिवेट होंगे जब पीएच का लेवल होगा वो लो होगा। क्लीवेज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स फ्रॉम पॉलीसेक्राइड्स, एक्सपोज पॉलीसेक्राइड्स नाउ एक्सेसिबल टू एंजाइम्स। Enzymatic cleavage of polysaccharides allows microfibrils to slide. Naturally, जब उनके बीच में bonds होंगे, they will break down. It will be easy to cell wall to slide. Cell wall can extend. Turgor causes the cell to expand. Naturally, endoosmosis takes place. After this, the turgor pressure of the cell will increase, which will help to maintain the size of the cell. Here is the graph to show what is the relation between the pH and the increase in the length, elongation of the cell. pH level should be low, due to which the oxygen will activate and the length of the cell will increase. Wall loosening during acidification involves rearrangement of the load bearing bonds. It is essential तो रिपेयरिंग ऑफ द जो टूटे हैं बॉन्ड्स और जो सेल वॉल का जो माइक्रोफाइब्रिल्स है उनमें ब्रेकेज हुई है, तो उनकी रिपेयरिंग जरूरी है। तो लोड बेयरिंग बॉन्ड्स ऑफ द सेल वॉल एंड प्रोबेबली इज मीडिएटेड थ्रू स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड द एक्सपेंशंस. Water uptake into the cells create an internal turgor pressure that pushes against the cell membrane and extend the cell wall. Because the plasma membrane is flexible, due to the increasing turgor pressure, the cell will extend. Once the cell wall is loosened, water moves into the cell, driven by higher internal osmotic pressure, and osmosis takes place after the higher internal osmotic pressure, thereby causing the cell to expand. ऑक्सिन इंटरेक्ट एट जीन लेवल बाय सिंथेसाइजिंग न्यू प्रोटीन्स, यानी कि जो ऑक्सिन होगा इट विल स्टिमुलस जो है भेजेगा, ये स्टिमुलाई करेगा, और जो मैसेंजर्स होंगे उनको मैसेज देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यू प्रोटीन्स जो है उनका सिंथेसिस होगा, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू सेल वॉल मटेरियल. तो this is how can auxin play important role in the cell elongation, because to increase the length of the plant, cell elongation is must, and this is the role of the auxin in the
cell elongation. These are the references. This is a small message for the students. And thank you, Bhaiya. Thank you very much. Thank you, ma'am, for such a nice and informative lecture. वाकई आपने बहुत अच्छा पढ़ाया मैडम, मेरी दिली शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपने वाकई बहुत अच्छा सुनाया और बहुत ही सधी हुई आवाज में आपने सब कुछ सुनाया और सभी बच्चों को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और सभी बच्चों ने सीखा भी होगा। अब मैं क्वेश्चन सेशन के लिए इन लोगों से कहता हूं कि अगर किसी के पास कुछ पूछना हो, किसी को कुछ जानना हो, तो वो मैम से पूछ सकता है। नाउ द लेक्चर इज ओपन, सो इज देयर एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी फ्रॉम बीएससी और एमएससी? अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, वरना मैं पूछूं फिर। It will be very tough for me. ऐसा नहीं है। You are my senior. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं ये बच्चे पूछेंगे नहीं, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो हमेशा बहुत इसमें जैसे कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ऑक्सीजन हार्मोन्स की मैकेनिज्म एंड ऑल अदर मैकेनिज्म्स इंक्लूडेड द जिब्रेलिन्स मैकेनिज्म, तो ये या साइक्लिक एएमपी या ये जो सारी चीजें हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक किताब में पूरी तरीके से दी नहीं हुई होती, कभी थोड़ा तो वहां से पढ़ना पड़ता है, कभी लेनिंजर से पढ़ना पड़ता है। तो ये बच्चे कैसे ये सब चीजें किन बुक से पढ़ें, कुछ सुझाव दीजिए ताकि इन बच्चों का प्लांट फिजियोलॉजी का डर निकले थोड़ा। जी बिल्कुल, बेसिक जो है उसके लिए तो बीएससी की जहां तक मैं बात करूं तो वीके जैन एक बहुत ही बेसिक बुक है जिसमें वर्मा भी है, बेसिक बुक है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। ये बोथ बीएससी बोथ पीजी और यूजी लेवल के लिए है, बट आई टॉक अबाउट द पीजी लेवल। तो पीजी लेवल की जहां बात होती है वहां अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग बुक में, जैसे वाटर रिलेशन की अगर हम बात करें तो सैलिसबरी इज गुड सैलिसबरी के लिए। एमएससी में एक बुक से आप किसी से भी एक टॉपिक को कंसल्ट नहीं कर सकते, या किसी एक टॉपिक कोई किसी में मिल जाए। जहां तक मैं डेवलिन की बात करूं तो जितना भी जो ग्रोथ है, ग्रोथ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो माय फेवरेट इज डेवलिन। मैं डेवलिन को बहुत पसंद करती हूँ, डेवलिन से बहुत कंसल्ट करती हूँ। लेकिन वीके जैन है, वर्मा है, सिन्हा एंड सिन्हा है, फ्रिट्ज है, ये काफी सारी बुक हैं जो एमएससी लेवल के लिए मस्ट है, क्योंकि एक बुक से कंसल्ट करके एमएससी लेवल के लिए नोट्स तैयार नहीं किए जा सकते, वो पूरी नॉलेज नहीं मिल सकती। तो एमएससी के बच्चों से तो मेरा यही है कि वो जो है डेवलिन को कंसल्ट करें, सैलिसबरी को कंसल्ट करें, फ्रिट्ज एंड नोजल को कंसल्ट करें, वीके जैन को पढ़ें। बेसिक जो है वो वीके जैन काफी है बीएससी के बच्चों के लिए, और एमएससी के बच्चे भी वीके जैन को पढ़ें, जिससे कि सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाते हैं वीके जैन से। जो मेरा अपना अनुभव है। नहीं, आपका अनुभव बिल्कुल सही होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं चाहूंगा कि किसी और का कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, और अगर नहीं तो मैं इनवाइट करता हूं बीएससी पार्ट 1 की एकता राजानी को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। एकता, आर यू देयर? Yes, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. Clearly audible. Please go ahead. Okay. Good afternoon, all of you. I'm Ekta Rajani from BSc first year. First of all, I would like to thank Adarsh sir who gave me an opportunity to deliver a vote of thanks. And thank you so much, ma'am, for this informative and valuable lecture. You explained it very well. It will surely help in our future. Once again, thank you, ma'am, for having spared your precious time for all of us and for sharing your opinions today. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटे। थैंक यू मैम, हमारी तरफ से भी, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका सर्टिफिकेट और आपका रिकॉर्डिंग सब अभी आपके पास पहुंच रहा होगा, ठीक है? थैंक यू आपके लिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदर्श वांटेड टू गिव मी सच अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल द स्टूडेंट एंड थैंक यू। मैं मुझे तो इस बात की खुशी है मैडम कि
जहां से मैंने सब ABCD सीखी है, तो वहीं से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की, बरेली कॉलेज बरेली से, और वहीं से इस कार्यक्रम का सीरीज का अंत हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे भैया, और आगे और सीखूंगी, मैं बधाई भी है। आपको बधाई देता हूँ कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपने समझाया, मजा आ गया बिल्कुल ईमानदारी से। थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू वेरी मच। नाउ एवरीबॉडी कैन लीव द मीटिंग। ओके, थैंक यू भैया।